جالی جو ان کی چومے تو سلک کہہ رہے ہیں، جالی جو ان کی چومے تو سلک کہہ رہے ہیں، جبرائیل چومتے تھے، جبرائیل چومتے تھے تلوار میرے نبی، کتنی بڑی مرتبہ ہے اعلیٰ میرے نبی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام مولانا غلام مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی علی حبیب الکریم، اما بعد۔ لمبا خطبہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم، ونحن للہ رب العالمین۔ مسجد کے امام ہیں، یہ امام ہے تو ان کے پیچھے میں مقتدی بن گیا، ان کی ابتدا میں بھی کر لیتا ہوں، تبھی تو نماز ہوگی۔ امام کی ابتدا کرو گے تبھی تو نماز ہوگی نا۔ ضلع تمہید بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں بھی ایسا کرتا، بہرحال آپ کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے سب کو اکٹھا کیا ہے، آپ نے تو سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اس بزم کے دلہا تو آپ ہی ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک دو شعر میں بھی تحت میں پڑھتا ہوں، اب ان کی اتنی اچھی آواز ہماری ہے نہیں، اس موقع کے حساب سے۔ آج کی رات کتنی حسین رات ہے، توجہ چاہوں گا۔ آج کی رات کتنی حسین رات ہے، دو دھڑکتے دلوں کی ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات کتنی حسین رات ہے، دو دھڑکتے دلوں کی ملاقات ہے، اور گنگا جمنا کا سنگم ہے پیش نظر۔ سبحان اللہ۔ گنگا جمنا کا سنگم ہے پیش نظر، عشق کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الطاف بھائی نے بہنی کرا دیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سنیے، یہ بزم ارم کیوں سجائی گئی ہے، یہ بزم ارم کیوں سجائی گئی ہے، یہ خوشی ہر طرف کیوں منائی گئی ہے، بتا دوں تمہیں میں کہ یہ بزم عالم محمد کی خاطر سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو مولانا صاحب نے کیا بولا، سبحان اللہ کہنا، اس کو اور ثواب کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، اور پورے سبحان اللہ میں 9 حرف ہیں، کتنے؟ تو آپ نے اگر ایک بار کہا سبحان اللہ تو 90 نیکیاں ملیں گی۔ یار کتنا چھوٹا، کتنی چھوٹی بات ہے، کتنا چھوٹا انداز ہے، کتنا کم ٹائم ہے، اور ثواب کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کا کرم دیکھیں۔ اور سنو، وہ 90 جو نیکی ملے گی آپ کو، اس کو اور بڑھا دوں، اور بڑھا دوں۔ سنو، وہی سبحان اللہ اگر حالت نماز میں کہو گے تو 900 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھ گیا کہ نہیں سواب؟ اور بڑھا دوں، سنو، یہی سبحان اللہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے، مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے، خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں اگر آپ جا کر کے نماز پڑھو، وہاں کی برکت سے 90,000 ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی کتنی برکت ہے۔ سنو، حضرت نے بھی آپ کو بتایا نہیں، جب کوئی بھی اچھی محفل کہیں رچائی اور سجائی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ نے 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے جن کا نام ہے کرامن اور کاتبین۔ کیا نام ہے؟ ایک دائنے کندھے پہ رہتا ہے، ایک بائیں کندھے پہ رہتا ہے، اور یہ دونوں کیا لکھتے ہیں؟ ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ اور سنو، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور
बल्कि रहमतों नूर की चादर को तान देते हैं। और जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो जाती है। सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारियों में से, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी है लेकिन हदीस से अखज़ की है, हदीस मुबारका का है। तो वो जगह क्या होती है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो जाती है। और ये बतलाओ मेरे दोस्तों मुस्कुरा के कि अगर जन्नत की क्यारी में आप बैठोगे तो आप कौन हो? आप सब जन्नती हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारी में बैठने वाले सब जन्नती। अब ये बताओ इतनी बेहतरीन जगह पे आप बैठे हो, तफसील में जाने का वक्त नहीं है लेकिन चंद बातें निकाह के ताल्लुक से बता दूं आपको। बकिया हजरत ने इशारा किया है, बहुत बेहतरीन इशारा किया है। सुनो, अब मैं ज्यादा उसकी इब्तिदाई बात नहीं कहूंगा लेकिन एक बात बताऊं कि सबसे पहले अल्लाह ने किसका निकाह किया? आदम और हव्वा का। सबसे पहले अल्लाह ने जब आदम के जिस्म के अंदर, पुतले के अंदर रूह डाला तो आदम क्या कहे? एक जमाने तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, बोला अकेलापन है, अकेले हूँ, कोई मेरे दिल का बहलाने का जरिया और सबब पैदा कर दे। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहोगे तो मेरे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। मेरे दिल को बहलाने का सबब और जरिया पैदा कर दे। एक जमाने तक आदम अलैहिस्सलाम मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने कहा, जिब्राइल अमीन, मेरा नायब, मेरा आदम बड़े जमाने से मांग रहा है, इसकी तमन्ना को पूरी कर दो, इसकी तमन्ना को पूरी कर दो। तो शेखे तौबा के चहकने वाले मलाइकुल सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ और जा करके आदम के बाएं पिछली को चीर दो। आए आए अल्लाह का हुक्म था। जिब्राइल अमीन आए, तशरीफ लाए, बाएं पिछली को चीरा तो उसके अंदर से खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर औरत निकली, औरत, लड़की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की बात है तभी आपको धक्का देना पड़ता है? सुनो, ये बहुत तारीखी बात बता रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना अगर तफसील से बताई जाती ना तो कई घंटा लगता, लेकिन वक्त कम है, मुख्तसर है, यही नजर। सुनो, मौलाना साहब बैठे आके मस्जिद के खतीब व इमाम, अल्लाह वाली मस्जिद के, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आए हाय, उसके बाद निकालने के बाद उन्होंने हाथ को फेर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? हाथ को उन्होंने फेर दिया। आज होता तो डॉक्टर चीरता है, खून निकलता है, पट्टी बांधता है, टाका लगाता है, लेकिन देखो अल्लाह की रहमत, हाथ को इशारा करके चीरा तो औरत निकल गई, दोबारा हाथ को घुमा दिया तो ऑपरेशन हो गया। सुभान अल्लाह। हो गया। सुभान अल्लाह। अब आदम अलैहिस्सलाम देखे, ललचाए, हमने कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ललचाए, आगे बढ़े कि पकड़ लूं, अल्लाह ने मेरे लिए तो पैदा किया, बहुत जमाने तक मांगा है तब दिया है, बेशक। बढ़े आगे। अल्लाह ने कहे आदम रुक जाओ। आदम ने हाथ जोड़ के कहे, ला ऐ मेरे मौला, बड़े जमाने तक मांगा तब तो तूने दिया, अब क्यों रोकता है? कितना इम्तिहान लगा मेरा। तो आदम को अल्लाह ने कहा, अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी जायज नहीं। अभी मौलाना ने क्या कहा? जायज और नाजायज। निकाह से पहले लड़की क्या होती है? नाजायज होती है, और निकाह के बाद जायज हो जाती है। अल्लाह ने कहा, आदम अभी रुक जाओ, तुम्हारा भी निकाह नहीं हुआ है। तो आदम ने कहे, मौला निकाह करा दे, क्यों देर कर रहा है? तो अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि फरिश्तों की जमात को लेकर के जाओ और फरिश्तों को गवाह बना करके आदम का माई हव्वा के साथ निकाह करा दे। सुभान अल्लाह। उसी औरत का नाम क्या है? इससे पहले कोई आदमी नहीं, इससे पहले कोई औरत नहीं, ये पहली तारीख है। सबसे पहले कितने थे? दो ही थे। अब निकाह हो गया, आदम अलैहिस्सलाम फिर लपके, अल्लाह ने कहा रुक जाओ। बोले अरे मौला अब क्या देर है, अब तो निकाह हो गया। आजकल होता है हजरत, निकाह पढ़ाए, महर बांध दिए, कितना
1 लाख 1.5 लाख बोलते कोई देना थोड़ा नहीं। सुनो, पहले निकाह की बात सुनो मेरे दोस्तों, और लिख लेना कि महर की क्या अहमियत है और क्या उसकी औकात है। सुनो, अल्लाह ने कहा, ए आदम निकाह हुआ है तुम्हारा, अभी तुमने महर को अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। अभी तुमने महर को अदा नहीं किया, अभी नहीं छू सकते, अभी नहीं छू सकते। अरे हाय हाय, आगे बढ़ो। उसके बाद आदम ने कहा, मेरे मौला, न मेरे पास रुपया है, न सोना चांदी है, न सिक्का और रियाल है, न दरहम और दिनार है। अरे मेरे पास जब कुछ है नहीं तो मैं दूं कहां से? सवाल पैदा हुआ, जब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं दूं कहां से? तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया, जरा कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। अल्लाह ने कहा, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे अंदर जिस्म के अंदर रूह डाली गई, तुमने एक नाम देखा मेरे नाम के साथ लिखा हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा, ए आदम, तुमने मेरे नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ देखा, याद करो। बोले मौला, मैंने ये देखा था, पहले लिखा था तेरा नाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में उसके साथ लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी के ऊपर अल्लाह ने कहा, उस मेरे महबूब के ऊपर 10 मरतबा तुम दरूद शरीफ का नज़ारे अकीदत पेश कर दो, दरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा निकाह हो गया, तुम्हारी महर अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी महर अदा हो जाएगी। तो क्या पता चला कि महर भी जरूरी है और उसके अदा को करना भी जरूरी है। आजकल निकाह होता है, हजरत मैंने बहुत सा ऐसा देखा है, मरने के बाद औरत आती है, पूछती है, हजरत बोले हाँ मर गए, हमारी बाजिया माफ करवा दो। अरे बेवकूफ हो सर, हामिल औरत, वो तो अब उसको अपने माफ कराने का तो कुछ फिक्र लगी हुई है, वो तुझे क्या माफ करेगा? अब तो दुआ कर कि अल्लाह उसको माफ करे उसके गुनाहों से, अब तुझको क्या माफ करेगा? बताओ, जिंदगी भर नहीं माफ कराई। और सुनो, महर माफ करने की चीज नहीं होती, अदा करने की चीज होती है। तो लिहाजा लोगों, एक बात ध्यान में डाल लेना, निकाह हो, इतना निकाह बांधो जो अदा कर सको आसानी से। और सुनो, सबे वरूसी यानी मुलाकात से पहले उस निकाह की महर को अदा कर दो, ये अफजल है और बेहतर है, और यही तरीका होना चाहिए। और सुनो, आगे बढ़ो। ये तो मैंने आपको इत्तलाई बात बताया, जो हजरत ने बताया उसके ऊपर अमल करने की। अभी तो कुछ बात सुनो, और सुनो, नबी की बारगाह में तमाम सहाबा कराम बैठे थे। तो हदीस शरीफ जान कर रहा हूँ, अपने बाप की बात नहीं, नबी पाक की बात कर रहा हूँ। नबी की बारगाह में चंद साहबा बैठे थे। अचानक नबी ने बोला, है मेरे साहबियों, जिसकी 5 लड़कियां हैं वो जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय, दूसरे साहबी खड़ा हुए, या रसूलल्लाह, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान। और जिसके पास 4 लड़कियां हो, बदलू कमाल खान साहब, आप बैठो, जो आएगा खुद बैठ जाएगा। आप मेरी बात सुनो, मिलाद शरीफ कराना सवाब है, सुनना उससे ज्यादा सवाब है। जो अक्सर मिलाद शरीफ करवाते हैं, खुद इधर उधर भागते रहते हैं। हालांकि ऐसे नहीं भागते हैं, वो अपनी जरूरत से भागते हैं, मजबूरी उनके साथ। लेकिन बेहतर यह है कि सुने, वो और अफजल है। क्या हुआ? एक साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह, जिसकी 4 लड़कियां हों, तो आकर ने फरमाया वो भी जन्नत। सुभान अल्लाह। एक साहबी रसूलुल्लाह